anyone can speak and whatever you are having the feeling you can share with you. सब लोग बात कर सकते हैं अपने आप, तो अपने जो मन में जो फीलिंग्स है, आपका जो थिंग्स है, थॉट्स है, उसको शेयर कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज द great thing here. So after that I'll just link with NLP. Okay, neuro linguistic program. Okay, the whatever programming already written in our mind, so you can reprogramming that instructions and whatever you are having the behavior and communication, somewhat to the style you are having, you can make it improvisation. Right? So that will take part of this in this session. Before that, we will do the we'll start this particular session with one small task. Okay. So you can ಬರ್ಬೋದು ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು पीछे चले गए, इधर 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 के पीछे आ सकते हैं, उधर आ सकते हैं, इधर बीच में भी आ सकते हैं. So my first activity is just remember your past days which you enjoyed very happily. Okay, जो भी आपका past life में बहुत खुशी का क्षण जो है उसको थोड़ा याद कर लीजिए. And whatever achievement you had did in earlier, okay, before today, so just remember that, and along with that just try to remember your childhood life. So ये सेशन स्टार्ट करने के बाद वही बोल रहा था मैं, आपके जीवन में सबसे अच्छा खुशी का जो अपने दिन गुजारा है ना, वो बचपन का रहता है. आप जाके सर्च कीजिए आपके माइंड में. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट डेज and make yourself energized. You can give the energy, you can give your energy to your mind and body by remembering that. ये कैसा होता है, कैसे आपको एनर्जी मिलता है, वो मैं बाद में बताऊंगा. First you make it a small event. So just you close your eyes. I'll give 2 minutes or 3 minutes. In that timing, you just remember your school days and college days and whatever you achieved, the successful point you implement. Okay. Start correct? Shall we start it now? Okay, then. Please close your eyes and concentrate on your breathing and remember the happiest emotion. Close your eyes and remember the happiest thing. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮುಖ ನೋಡು, ಕೆಲವು ಜನದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮುಗುಳ್ನಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. Most of the people are smiling now. बहुत सारे लोग अपने से स्माइल कर रहे हैं फेस में. आते रहते हम आप सर कंटिन्यू अच्छा है ना, इधर भी बढ़िया. अभी एनर्जी एक्टिव हो गया, क्या होता है कॉर्नर पॉइंट से इधर जाता है. उनको भी अच्छा लग रहा होगा, पैर वैर हिला पा रहे थे. हाँ, यहाँ पे हम अभी नीचे. अच्छा 2 दिन पहले मैरिज एनिवर्सरी था, सब लोग मिस कर दिए. इस बार थोड़ा स्पेशल किया. मैं आजादी को लेकर दिन का बहुत शुभकामना. नहीं, इस बार एक मराठी से साउथ इंडियन बना. हाँ, मतलब मैं प्लान किया था कि मिसेस भी साउथ इंडियन साड़ी ली, व्हाइट कलर का जो शादी में पहनते हैं, और मैं भी लूंगी वो पंचा उनका डाल के मीनाक्षी मंदिर जाके दर्शन किए. तो तीनों का लुक लेकिन वो भी एनिवर्सरी के दिन नहीं गया, उसके नेक्स्ट डे गया. एडजस्टमेंट अगेन डबल ड्यूटी किया. शादी वाले दिन भी ड्यूटी करवा रहे हो. शादी तो करवा दो अपने घर से. शादी को छोड़ कर It's a wonderful time nowadays because everyone is speaking out, everyone is open up to yourself. सब लोग को चांस मिल रहा है, सब लोग अपना जो मन में हो रहा है आराम से बोल रहे हैं. यहाँ थोड़ा रिस्पॉन्स कम हो रहा है, यहाँ पे I want to speak. ये प्लांट का जो बॉस सिस्टम है ना, उसका डर नहीं है. हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं. हाँ, कुछ भी डर नहीं है. सब everyone is equivalent and
yourself. आप किसी से बातें नहीं करोगे, किसी से आप शेयर ही नहीं करोगे, you are not able to take the situation, you are not able to enjoy that particular feelings. So लाइफ में जीने का मजा नहीं आता है. सबका सुनना है, आपको भी सुनाना है, तभी you can get the more experience of the life. You can see the different angles of the life. Okay, when you are starting exploring yourself with taking the things and thoughts and experience of the other people, you can make your life very beautiful. जब आप किसी का सुनेंगे नहीं, किसी का उसका बात नहीं करोगे, आपका लाइफस्टाइल कैसा है आपको पता नहीं चलेगा. जो भी है बात चाहिए, ऐसा सोचते हैं. सो हम काम किस लिए करते हैं? काम किस लिए करते हैं? बेसिक व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ पेट के लिए करते हैं. पेट के बाद में क्या करते हैं? खुशी के लिए करते हैं. व्हाट एवर फॉर द टू मेक योरसेल्फ हैप्पी. आपको खुश रहने के लिए काम करते हैं. खुश रहने का बहुत सारा रास्ता है. यू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ वे पाथ टू हैप्पीनेस. अब ये ऐसा होता है. There's some I want to share some thoughts. आपका मन कैसे खुश होता है? मतलब आपका अच्छे काम करें, जो हम डिस्कस किए अभी, हम जो चाहते हैं वो काम करें. वो चाहना जो है ना, वो कैसा फील होता है आपको? कैसे आपका यही इंटरेस्ट है? So you are attracted some particular thing. What sir had explained in his story, what attracted by the shoes like that. So everyone is having some attracted with some situations, some persons, and you are making yourself to follow that one. कुछ लोगों को इंजीनियर बनना है, कुछ देखा होगा इंजीनियर का काम है, सब कुछ अट्रैक्ट हुआ. कुछ लोगों को डॉक्टर बनना है, कुछ लोगों को डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट प्रोफेशन. क्यों चूज करते हैं? They are seeing that they are enjoying that one. Okay, the people are enjoying that one. They are getting the good respect from that particular job. वो देख के उनको भी वो बढ़ने का जो भाव है वो जरूरत होता है. So like that your program is writing that one. So ऐसे ही आपका बात करने का तरीका, आपका बिहेवियर, आपका जो नेचर है, ऐसे ही बिल्ड होता है. आपका घर में आपका पेरेंट्स जो बात करते हैं, उसका बिहेवियर कैसा रहता है सोसाइटी के प्रति. सो नेबर से कैसे बात करते हैं, सो बाहर कैसे व्यवहार करते हैं, दुकान में, सब ये सब आपको विदाउट योर नॉलेज, जस्ट यूर प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड. आप आपके डैडी मम्मी के साथ जाते हैं ना बचपन से, वो कैसे बात करते हैं, वही आपका प्रोग्रामिंग बनना है. So these all things will happen without your knowledge. Your brain is writing the programs. So that you have to rewrite, you have to regenerate. So उसको regenerate के लिए मॉर्निंग ऐसा प्लेस में आके आपको याद करना है आपका जो बचपन है कैसे गुजरा है. So where are things I can improve? What are the behavior I can improve? Where I have to make ourselves good programming. कैसे प्रोग्राम improve कर सकते हैं? How you can make ourselves happy? So day to day आपका जो वर्क रहता है उसमें आपका दिमाग जो कैसे शांत रखना है, कैसे you have to win the heart of your co-workers, कैसे उनसे काम निकालना है, आपको कैसे उनसे काम देना है और काम अच्छी तरह से निकालना है. ये सब जो बात है ना वो आपको प्रोग्रामिंग लिखना है. So every person has had different things and thoughts. बिहेवियर चेंज रहता है, उसका स्पीड चेंज रहता है, उसका हम यू कांट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम ऑल द पर्सन. कुछ लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं, कुछ लोग अच्छा काम करते हैं मगर इट टेक सम टाइम. कुछ लोग एक ही बार में समझ जाते हैं, कुछ लोग 2-3 बार बोलने का समझ जाते हैं. So these all things you have to understand. How my co-worker is working. Is he fast worker or slow worker or perfect worker or he is having some problems? You have to understand that one. You have to sit with them and you have to discuss with these all things. कैसे क्या हो, कैसे होता है, ऐसा बाहर आके थोड़ा बैठते हैं ना, वो ओपन अप हो जाता है आपसे. आपका दिमाग कैसा है उनको पता चलता है, वो कैसे सोचते हैं, उसका बचपन क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो भी सोचते हैं. मैंने काउंसलिंग किया था, कुछ लोग काउंसलिंग में अटेंड हो गए थे, उसमें यही करते हैं हम लोग. तो उनका जो माइंड में चलता है ना वो क्यों होता है, रूट कॉज फाइंड आउट करना है. तो रूट कॉज को करेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली योर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन यू कैन गिव द बेटर ऑप्शन. अच्छा रिजल्ट आप दे सकते हैं. ये कैसे होता है, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट दैट कॉज. वो आदमी क्यों ऐसा इरिटेट होता है. उनको कुछ लोगों को क्या होता है, आप उनके ऑफिस में जाते हैं ना, आपको खुशी हो जाता है, यू फील हैप्पीनेस. जो भी आपका फ्रेंड आता है सामने, उसको देखने से, वहाँ देखने से आपका मन खुशी हो जाता है. ओके ये मेरा दोस्त आए हो रहे. कुछ लोग देखने से उधर आते हैं, उधर से चले जाते हैं. ये थोड़ा ठीक से बताया. कुछ लोग मन में इतना गाली देता है इसका क्या होता है समझ में नहीं आता. ये थोड़ा ओपन कर दिया और थोड़ा इग्नोर दिया. वो गाली को ये समझ में नहीं है, होगा साला वो नहीं जमेगा, नहीं जमेगा. ये जो है ना
ना, ये क्यों होता है ऐसा? कुछ बार में ऐसा होता है, पहली बार आप वो आदमी को देखते हैं, फर्स्ट टाइम यू आर लिविंग दैट पर्सन, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर भी आपका कनेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि उनका जो दिमाग में जो सिग्नल्स रहता है ना, उनका अलग रहता है, आपका अलग रहता है। ओके, सिचुएशन देखने का नजरिया अलग रहता है, सिचुएशन एक ही रहता है। अगर मैं एक सिचुएशन दिया तो आपको वही सिचुएशन दूसरे को भी देते, तो हर लोगों का डिफरेंट व्यू रहता है। ओके, अगर आपको मैंने बोला देयर इज अ बिग बस स्टैंड, ओके, सब लोगों को पिक्चर आ गया ना, दिमाग में पिक्चर आ गया बस स्टैंड का, मैं आपको ड्राइंग करने के लिए बोला तो हर पिक्चर अलग अलग रहता है। ओके, कुछ लोग आपका बचपन में जो आपका जो स्कूल जाते वक्त बस स्टॉप में खड़े रह के जाते थे ना, वो पिक्चर ड्रा करते हैं। कुछ लोग ऑफिस जाने के लिए खड़े रहते थे, वो बस स्टॉप। कुछ लोग बड़ा बेंगलोर का सर बॉम्बे का ऐसा कुछ जाता है, वो ड्रा कर देते हैं। सो डिफरेंट व्यूज यूर हैविंग, डिफरेंट पिक्चर्स यूर हैविंग, सबका एक ही नहीं रहता। वो जो सिग्नल्स जो है ना, आपको विदाउट योर नॉलेज, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में बोल रहा था, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट से आपका जो कॉन्सेप्ट सिग्नल्स है वो घूमता रहता है। आपका फोन में कैसे कॉल आता है, एयर में से आता है ना सिग्नल्स, आपका भी जो सिग्नल्स रहता है दूसरों के प्रति, वो एयर में जाता है। ओके, दैट विल बी रिसीव फ्रॉम अदर पर्सन, विदाउट योर नॉलेज दैट वो सिग्नल्स रिसीव होता है। अगर मैं पहली बार किसी से मिल रहा हूँ, तो क्या ऐसा ठीक ठाक नहीं लगा आपको, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक नहीं लगा है, ठीक कैसे लगा आपको, आप जाके उनको आप क्यों ऐसा पता नहीं यार, मुझको अच्छा नहीं लगा, क्यों बोलते हैं ऐसा? सिग्नल्स इज नॉट मैचिंग विद योर थिंग्स एंड थॉट्स एंड सीखने का, वो तो बहुत बार होता है ऐसा, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। हाँ, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता है। अच्छा लगेगा, बुरा भी नहीं लगेगा। कुछ लोग ऐसा होता है, देखने से अपनापन लगता है, गुड पर्सन, आई थिंक बाय सीइंग दैट यू कैन गेट दैट वन इज अ गुड पर्सन, ऐसा आपका दिमाग में होता है। ये सब आपका प्रोग्रामिंग है, आपका बचपन कैसा गया, एवरीथिंग व्हाट यू आर हैविंग, सो बिफोर 18 और समथिंग एज इज देयर ना, that all program is done actually 3 to 4 years and 5 years 6 years जब बच्चे रहता है ना, तब से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है आपका। without your knowledge your brain is writing your program, what you have to do and how you have to behave, whom you have to like, whom you have to don't like, to whom you have to speak, to whom you have to communicate, ये सब जो प्रोग्राम है ना, वो सब लिख के बैठे आप। सो प्रोग्राम के हिसाब से आपका माइंड चलता है, क्योंकि आपका मन ऐसा प्रोग्राम लिख के छोड़ दिया उसको। अब जो प्रोग्राम आज का सिचुएशन के लिए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम सोचते नहीं हैं, वो सोचने का। सो अगर मैच नहीं हुआ तो यू हैव टू मेक योरसेल्फ चेंज, वो उसको थोड़ा चेंज करो यार, बोलते हैं ना, उसको नहीं चेंज करना है, उसका थॉट्स वगैरह चेंज करना है। उसको चेंज करना है तो उसका ड्रेस चेंज नहीं करना है, उसका थॉट्स एंड बिहेवियर चेंज, उसका बिहेवियर कितना बोले तो चेंज नहीं हो रहा है, क्यों बोलते? उसका प्रोग्रामिंग उतना स्ट्रॉन्ग से छपे है उसके दिमाग में, तुम ऐसा ही करना, तुम ऐसा ही बोलना है, दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ये जो है ना, इसको प्रोग्राम को थोड़ा शाम बैठ के उसको रीप्रोग्रामिंग करता है। रीप्रोग्रामिंग करने के लिए कैसा आदमी चाहिए, जो उसका बात मानता है। हाँ, एंटीवायरस लगाना है, एंटीवायरस है, एंटीवायरस करता है, प्रोग्रामिंग करता है, एंटीवायरस प्रोग्रामिंग कैसा है उसके ऊपर डिपेंड 100% डिपेंड करता है उसका प्रोग्रामिंग कैसा है। उसके साथ चाहिए ना, या अंकर चाहिए, पता नहीं या किस टाइप का चाहिए, ओ किस टाइप का चाहिए, दाढ़ी का तो हाथ नहीं है, खतरनाक स्टाइल, उसका स्पेसिफिक होना जरूरी है। ये जो प्रोग्रामिंग है ना, इसको अच्छी तरह से करना है। उसको करने के लिए बोलते हैं ना, आपका बात मानता है, थोड़ा बताओ उसको, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी आपका फ्रिक्वेंसी जो है मैच होता है, और so that is what we are putting that रीप्रोग्रामिंग का जो सिचुएशन है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसको आने वाला जो सेशन करते हैं ना, हम स्टेप बाय स्टेप और भी ऐसा सेशन करेंगे, तब मैं बताऊंगी कैसे करना है उसको, कैसे आप पास कर सकते हैं। सो काउंसलिंग जो है आपके घर में भी, मैं बोलता हूँ बच्चों से आराम से खुले मन से बात करो, बच्चों से भी अच्छे प्रोग्रामिंग अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि दे विल बी हैप्पी इन देयर लाइफ। जो भी काम करके उसको बोलना है, सडन से डांटना नहीं है, उसको बोलते हैं आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, पेरेंटिंग एक कला है, उसके हिसाब से मैं मोर देन 500-600 प्रोग्राम किया हूँ, रेडियो में भी बात किया हूँ, FM में भी बात किया हूँ। सो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग कैसा होता है, सो आपका जो
बच्चे जो है ना उनका दिमाग से डर निकालना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ओके, खुद डिसीजन लेने का क्षमता डेवलप करना है, तब जाके वो अपना कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ कहीं काम करते हैं, तब उनका सक्सेस इजीली वो सक्सेस पा सकते हैं और दे कैन एंजॉय देयर लाइफ, उनका लाइफ अच्छी तरह से स्पेंड कर सकते हैं। उसके लिए हम उनको अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग करना है, कैसे करना है बच्चों के साथ बैठ, जो कि एग्जाम में मार्क्स लेके आता है, ओके अच्छा मार्क्स नहीं है तो क्या करते हैं आप, डांटते हैं, कंपेयर करना, देखो पड़ोस का वो बच्चा है ना शर्मा जी का बेटा उतना अच्छा काम किया है, हमेशा शर्मा जी का बेटा ही खेला। वो बहुत ही कैचिंग वर्ड है, वो अच्छा है, शर्मा जी का बेटा बहुत अच्छा है। हमारा जीएम सर के पास एक स्टोरी है, वो बोल रहे थे हमको ये बच्चों का मार्क्स लाना पढ़ाई लिखाई के ऊपर, अब वो सर उनको बोलिए शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा है शेयर सर, लेकिन शेयर तो उस दिन गाड़ी में जो आप बता रहे थे वो पढ़ाई लिखाई करवाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो जो बात अभी साहब क्या बोला था भूल गया, तुम ही बताओ। चालू करता हाँ स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो, पिकअप नहीं आ रहा। बता रहे थे ना सर, देखो कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम बराबर नहीं बराबर राइट नहीं, ओवरलोड हो गया ना, ऐसे डिलीट नहीं हुआ, ओवरलोड दब गया बहुत नीचे, देखो वो सिखाना जरूरी होता है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ अभी आ गया तो यहाँ करना चाहिए क्या? स्टार्ट कीजिए सर। बहुत पहले की बात है, एक मेरा फ्रेंड मैंने कल ही जब हम लोग एक साथ काम कर रहा था टाटा ग्रुप में, तो वो एक्चुअली बहुत लैंडलॉर्ड था, बहुत पैसा था, लेकिन वो ब्लैक मनी से ही काम करता था साथ में। तो वो उसका एक कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, है बहुत पैसा वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा लोग को भी वैसे ही वो एकदम फ्री छोड़ता था। यार तेरा बच्चा वहाँ खेल रहा हो, वहाँ घूम रहा, उधर कूद रहा, कभी जाके वो कैनाल के पास चल जा रहा, तो बोला देखो पढ़ाई अपना जगह, ये सब अपना जगह, पढ़ाई के साथ साथ में उसको हर एक एक्टिविटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बचपन से अगर देगा ना, तो भले लड़का बहुत अच्छा पढ़ लिया लेकिन ये सब कुछ भी नहीं जानता, कभी बेकार है, तो भी बेकार है, कोई मतलब नहीं है। कभी बेकार है। अगर ठीक है बहुत अच्छा पढ़ने के साथ साथ में ये एक्टिविटी सब है तो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। तो मार्क्स ही नहीं देखना, मार्क्स के साथ साथ में ये सब एक्टिविटी, अगर मार्क्स 100% आ गया लेकिन बच्चा कोई मतलब नहीं, करेक्ट है ना? इसीलिए 100 के अलावा अगर 80 भी आता है लेकिन बच्चा बहुत एक्टिव है, वो 100 से भी अच्छा है। बाकी चीजें पता है ना उसको। हाँ बाकी मालूम है, कैसा मार्केटिंग करना है, कैसा आदमी को डील करना है, किसके साथ कैसा रहना है, 100 वाले से ज्यादा 100 वाले से ज्यादा अच्छा हो, कैसे पॉलिटिकल लोग को हैंडल करना है, कुछ भी हो, मैंने वो एक बार अगर उस जगह पे आ गया तो हैंडल कर लेगा कुछ पढ़ाई भी। का कीड़ा नहीं होगा। तो इसलिए उसको बहुत स्ट्रांग बनाना है, मैंने पढ़ाई के साथ साथ भी माइंड से बोलो या दिल से बोलो, बहुत स्ट्रांग बनाना अपने आप को, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा लगा। उस टाइम बहुत हमें छोटा था, एकदम फ्रेशर था उस टाइम, वो उस टाइम में ऐसा बताया था, तो सोचो उसका दिमाग कहाँ तक है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यही मैं बताना चाहता था। So what sir has explained, so this is the thing, you have to always, you have to support our kids। कोई अच्छा प्रोग्रामिंग लिख सकता है अपने दिमाग में, अगर वो फेलियर रहता है ना तभी हम उसको हमारा ज़रूरत ज़्यादा रहता है, जब वो अचीव करता है तब ज़रूरत नहीं रहता, वो तो अपने अचीवमेंट में वो उसको एंजॉय करते हैं, सब कुछ के साथ आराम से रह सकता है। when he is in the failure, when he is facing the challenges, मैं प्रॉब्लम्स नहीं बोलता हूँ, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं बोलना है, चैलेंजेस बोलना है। प्रॉब्लम आप बोलोगे ना, आपका दिमाग जो है ना स्टार्ट थिंकिंग, ओके, स्टार्ट वरीइंग। व्हेन यू आर टेकिंग दैट प्रॉब्लम एज अ चैलेंजेस, योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग, थिंक करने से क्या होता है, आपका अच्छा अच्छा सॉल्यूशन निकल जाता है। सो प्रॉब्लम मीन्स आप चिंता करते सो जाते हो, क्या छोड़ यार प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम नहीं बोलना, उसको चैलेंजेस बोलना। When the challenge you come to your mind, automatically will be activated। वो challenge है क्या, देखो क्या होता है, करके दिखाएंगे। So ये दिमाग में challenge लेना है प्रॉब्लम्स को। So when you have to teach these things to your kids,
जो भी आता है जो भी होता है वो बच्चों को ऐसा कॉन्फिडेंस देना है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़ो। जो भी प्रॉब्लम होता है, कुछ सिचुएशन बाहर से कुछ उनको हाल पहुँचता है, तब भी आप उसके साथ रहना। टीन एज में बहुत प्रॉब्लम होता है, टीन एज में कुछ हम उनको जो बोलते हैं वो समझ नहीं आता, सो अफेयर्स होते हैं, सो बहुत अट्रैक्शन होता है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी रहते हैं आपके उनके स्टडी में, सो हैबिट्स ट्राई करते हैं। सो ये जो है ना, आप उनके साथ दोस्त बन के बैठ के बात करना है। तो आप ये नहीं करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा बोलने के बजाय ये किया तो ऐसा होता है, ये करने वालों को ऐसा हुआ है, बोल के उसके साथ आराम से बैठ के बात करोगे ना। व्हाट्सएप एग्जाम्पल उनके साथ में जाके आप दिखाना है, बात बोलना है। अरे यार उसको ये नहीं दिखाना है, ये नहीं बोलना, ऐसा नहीं रहे। यू हैव टू feel they are your friends. Okay. So when at that time they are very open up and they will communicate with whenever they will face anything. So they will come and they will speak with you. So ऐसा आप माहौल करेंगे ना, नेक्स्ट जनरेशन जो है ना वो बहुत अच्छा मीन्स दे विल एंजॉय दैट लाइफ। अभी फॉरेन में जो मीन्स हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री, सो फ्रीडम ज़्यादा देते हैं। वो कुछ लोग ऐसा करते हैं 6 महीने काम करना, 6 महीने सब बाहर घूमना। सो दे आर हैविंग सम डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑफ द एंजॉइंग। सो हम हमारे इंडियन कल्चर में भी कुछ स्टाइल्स हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको ध्यान करते हैं। सो वी हैव टू बैलेंस दैट लाइफ स्टाइल। सो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, थोड़ा बीच का रास्ता है, ढूंढ के अच्छी तरह से हम एंजॉय कर सकते हैं सर। दूसरों से अलग भी नहीं रहना है। सो हमको खुद को चेंज भी नहीं करना है। हमारा ऐसा बैलेंस करके जो लाइफ करना जो सिखाते हैं ना बच्चों का, वो दे विल बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। सो दिस आर द टॉपिक्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे। मोreover हम जो काम करते हैं उसके ऊपर हमारा ब्रेन का एनर्जी कैसे प्रॉफिट होता है वो भी एक थोड़ा बता देता हूँ। सुबह से हम शाम तक काम करते हैं, थक जाते हैं, घर में कुछ इश्यूज रहता है, वहाँ भी हमको टाइम देना पड़ता है। ये सब बैलेंस करना है। बैलेंस करने हमारे दिमाग को बूस्टिंग करते रहना है। कैसे बूस्टिंग करना है? रिमेम्बरिंग द व्हाट आई गिवन द इवेंट्स, दैट इज द मेन टेक्निक्स। एंड कम्युनिकेटिंग विद द फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मीन्स क्या करते हैं हम लोग, बहुत एक मिस्टेक करते हैं। क्या मीन्स, हमारा काम खत्म करते ही हम गाड़ी लेकर घर जाते हैं ना, हमारे कोलिग्स को ही फोन करते हैं, सीनियर्स को, नहीं तो सबॉर्डिनेट्स को फोन करते हैं। वो नहीं करना है। जो साथ में काम करते हैं उनको छोड़ के दूसरों से बात करना है। आपका बचपन का फ्रेंड जो भी रहता है आपके सिटी में, ओके, उनको फोन करना है, उनसे बात करना है। ओके, पड़ोसन से नहीं, पड़ोसी से बात करो। अपने आप को अलग माहौल में लेके जाने का। एक प्रोग्रामिंग लग रहा है, फिर वही बात करेंगे, फिर वही कहानी वही बार-बार आ जा रहा है, पूरी वही अटक रही है। जब सभी कुछ प्रोग्रामिंग है प्रोग्रामिंग हट नहीं रहा है। हम सोचे भी नहीं, हम सोचे भी नहीं बोलिए। हाँ, वो बोल रहा है। क्या बोला मैंने? हम पड़ोसी ही सोचे, वो पड़ोसी बोल भी दिए। हाँ, आप सोचे, मैंने बोल दिया। मैं सोचा नहीं, आप बोल दिए। मतलब प्रोग्रामिंग इधर ही है। सो ऐसा होता है, आप सब पड़ोसियों से बात करने से क्या होता है, सबसे पहले आपको हेल्प करने के लिए कौन आता है? रिश्तेदार आता है। कौन आता है? फ्रेंड्स तो दूर रहता है, पड़ोसी है। पड़ोसी है। आपके घर में पड़ोस तो कुछ गिर गया, टपाक से सुन रहे पड़ोस, क्या कुछ गिर गया क्या? अंकल क्या हो गए? आता है भाभी जी क्या हो गए? वो तो रेडी रहता है, भाभी जी बोल के अंदर नहीं। भाभी जी घर पे है, भाभी जी घर पे है, वो एक सीरियल चलता है। सो दैट इज व्हाट आई एम हैविंग। जो पड़ोस जो रहते हैं ना, वो दे आर द रियल योर मींस हेल्पर। ओके, वो सबसे पहले आपको हेल्प करने के लिए आने वाले आपका रिश्तेदार, सही रिश्तेदार वही है। इसलिए आपका रिलेशन अच्छा रहना है उनके साथ, रोज बात करना है। शाम जाते हैं ना आप घर जाके, सब लोग क्या करते हैं, डोर लॉक करके सो जाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सब ऐसे करते हैं। सो छोड़ के 10-15 मिनट आप नीचे आ जाओ, ऊपर रहते तो ऊपर है तो नीचे रहते तो ऊपर जाओ, पड़ोस में जाओ, उस तरफ जाओ। कैसे है शर्मा जी? नहीं, जाके बात कर सकते हैं। कोविड है नहीं। हाँ है नहीं, आराम से बात कर सकते हम लोग तो कोविड में भी बात कर रहे थे। कोई नहीं ज्यादा बात होता है। कोई नहीं, कोविड में भी बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है। कोई नहीं, अपार्टमेंट में ज्यादा बात होता था। सो इसमें क्या होता है, आपका जो दिमाग में प्रेशर है ना वो निकल जाता है। नहीं, फिर वही कोलिग से बात किया, फिर क्या करते हैं पता है, कोलिग से जाके मिलते हैं शाम में, अरे यार जो यार
सो बैठ के हम एक ही काम करते हैं, बॉस को गाली करना और कुछ नहीं काम करते। यही काम होता है। जूनियर जो मिलते हैं ना, जूनियर जो मिलते हैं ना, वही बात करते हैं यार, उसको देखो यार, इज्जत लोग के साथ उन्हीं के साथ बैठते होंगे इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, you have to come out of that situation। वो सिचुएशन से बाहर आना है। आपका रोज सुबह से शाम काम करते हैं, वो सिचुएशन से बाहर आना है। आपको माइंड को रेस्ट कैसा मिलता है? स्विचिंग ऑफ फ्रॉम वन प्लेस टू स्विचिंग ऑफ अनदर प्लेस, क्योंकि आपका दिमाग 24 आवर्स एक्टिव रहता है, उसको सुला नहीं सकते आप। सबकॉन्शियस माइंड 24 एक्टिव रहता है, उसको रेस्ट कैसे देना है? चेंजिंग योर सिचुएशन, चेंजिंग योर एटमॉस्फेयर, उससे आपको रेस्ट मिलता है। सो आपका जो साइकिल, रोज साइकिल है ना, सुबह संडे सुबह उठता, वो साइकिल को मैं ये प्रोग्राम से ब्रेक किया। सो यू आर फीलिंग सम डिफरेंट नो। सो व्हेन यू हैव द डिफरेंट थिंग्स, योर माइंड इज रिलैक्स। रोज एक ही संडे, एक ही दिन में एक ही रूटीन रहता है, वो रूटीन कभी कभी ब्रेक करना है। ब्रेक करने से क्या होता है? आपका दिमाग फिर एक्टिवेटेड। सो ये आपको सिखाना है। सो इसलिए whenever you come out of your means evening, out of just come out of your go with your neighbors and your other people, बचपन का जो लेकिन उनसे आप जाके बात करोगे ना, सब बचपन याद आता है। अरे हम जब उधर जाते थे, इधर जाते थे, देखो आज का बच्चे ऐसे कर, सब बात करते हैं ना। सो दैट विल मेक यू हैप्पी, यू एंजॉयड एवरीथिंग इन योर लाइफ। When you feeling that you are enjoyed everything, means you will be satisfied. When you are satisfied with your life, that is a good lifestyle. Okay, that is a good lifestyle. So बोल रहे थे ना, satisfied होना है, satisfied हो तो अच्छा काम कर सकते हो। कैसे satisfied होना है? आपको कैसे लगना है satisfied होने के? When you communicate with your friends, okay, when you are sharing your thoughts, when you are listening the words from those people, so that will make you the confidence and you satisfied life what you have. जो भी है आपके पास, उसको enjoy कैसे कर सकते हैं? तो क्लासमेट से मिलिए, पड़ोसी से मिलिए, और दूसरे जो है रोटरी क्लब्स है, लायंस क्लब्स है। ओके, आई वाज अ मेंबर ऑफ रोटरी क्लब, आई वर्क एज अ सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, आई वर्क विद सो मेनी सोशल वर्किंग एंड आई एम हैविंग टुडे आल्सो, नाउ आल्सो आई एम हैविंग सम लिंक विद सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। वहाँ ऐसा प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ एड्स चैलेंजेस बच्चे आते हैं, ओके, कैंसर पेशेंट्स रहते हैं। सो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जाता हूँ, वहाँ रिहैबिलिटेशन उनको हैबिट निकालने के लिए कुछ लोगों को ऐसा जमा करके रखे रहते हैं, उनके साथ जाके बात करता हूँ। Some Sundays, whenever I'll get the time, I'll go and I'll communicate with those people. I'll go with some fruits and some biscuits, something, and 100-200 रुपये खर्च होता है, ज़्यादा नहीं होता है। सो हम कहीं जाके खर्च करने के बजाय वो लेके उनको दे के उनके साथ बच्चों से बात करके, अनाथ आश्रम में सेंटर्स रहते हैं, वहाँ जाके बात करने से क्या होता है? आपका माइंड एक्टिव होता है। तो मैं दुनिया में हूँ, मुझसे कुछ लोगों को फायदा कराना है, कुछ लोगों को अच्छा लगना है। जब वो अच्छा लग के हमको बोलता है ना, सर थैंक यू सर, आप आए, हमारे बच्चों से बात किए, उनको कुछ बोला, अच्छा बात बोला, कुछ स्टोरी बताया, तो कितना खुश हो रहे हैं। स्टोरी अच्छे से उनके साथ स्टोरी शेयर करना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर। सो जब वो बोलते हैं ना, आपका मन विल बी हैप्पी एंड प्राउड, तब आपका बीपी सब लो हो जाता है, आपका ऑर्गन एक्टिव हो जाता है। ओके, दुनिया में मैं यहाँ हूँ, उससे कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। ओके, उससे कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब लोग उससे डिपेंडेंट है। So that is my responsibility. Every person is having some social responsibility because we are getting all things from the society. ये सोसाइटी से कुछ हम सब कुछ मिल रहा है ना, उसको सोसाइटी से कुछ तो शेयर करना है। You have to give something to the society. Okay. ऐसा बहुत सारे लोग हैं, लास्ट ट्रेनिंग में आए तो कुछ लोग आए तो वो लोग so they are doing some social work and they are feeding some foods and everything. So ये जो है ना काम है ना, so ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, मगर उससे आपको करोड़ों देने से भी खुशी नहीं मिलता, उतना खुशी आपको मिलता है। So that you have to make it, and ऐसा कुछ करते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। बस का क्या है, बस जाने का? हाँ, आप जाने का कितना हो गया? कौन सा बस पकड़ रहा है? ये सब ये बस जो है ना पकड़ ही जाता है आपका, लेकिन छोटा बस है। ये राइट कंपनी जगह छोटा बस। हाँ, कितने बजे? ಇದೇ ಬಸ್ ಹೋಗೋದು ಅದು ಒಬ್ಬರು ಬಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಸ್ ಇದೆ ऊपर से आएगा ना नहीं सो ऐसा कुछ करते हैं तो उसको शेयर कर दीजिए और उसको कंप्लीट कर देंगे प्रोग्राम।
कोई कुछ लोग ऐसा कुछ हेल्पिंग काम करते हैं रोज हेल्प करते हैं ऐसा सोशल करते हैं बिकॉज एवरीवन इज हैविंग अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी हम कंपनी करते हैं सीएसआर एक्टिविटीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो करते हैं ऐसे ही हर एक आदमी का एक रिस्पांसिबिलिटी है एवरी पर्सन इज हैविंग सम रिस्पांसिबिलिटी अगेंस्ट द सोसाइटी हम सोसाइटी में क्या दे रहे हैं सो ऐसा कुछ कर रहे हैं कुछ ओके प्लीज यू लाइक ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ವತಿಯಿಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡಗಳ ನೆಡುವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 100 ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾರೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಗೊಂದು 6-7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. Every day, how many trees you are planting, sir? Yearly? ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ yearly and ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 100 ಗಿಡ ಇಡ್ತೀವಿ ಒಂದು 100 ಗಿಡ. so that is continuing up to now since from 6 years you are continuing. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ. प्रकाश सर बोल रहे हैं अभी 6 साल से वो लोग अपने गांव में प्लांटेशन कर रहे हैं एवरी ईयर दे आर प्लांटिंग nearly 100 trees the surrounding of their villages. Okay, 6 years से चलता आ रहा है means around about 600 to 700 trees are there. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೆಡೋದಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ Okay, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಗಿಡನ ಫ್ರೀ fine, sir. Very good. So very good initiative. And he donated his eyes also. He donated his eyes also. He donated his eyes. सही है क्या सही है So नहीं उसका एक्टिविटी बहुत that is what I want to see. एक्सप्लोर होना है लोग सब लोग काम करते बहुत सारे लोग काम करते हैं मगर क्या होता है काम करते करते हम कहीं चुप जाते हैं ना तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हम अच्छे काम करते हैं उसको एडवर्टाइज करो ये बोल रहा हूँ हम जो काम कर रहे हैं उसको सबको बताने से क्या होता है कुछ लोग इंस्पायर होते हैं और भी कुछ इंस्पायर करने के लिए बोल रहे हैं किसी को एडवर्टाइज करने के लिए उसको बड़ा को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं बताया मैं आप शेयर करो बोल के आप जो शेयर करते हैं ना वो सुन के दूसरा भी क्या होता है एनर्जी आता है उसको मैं भी कर सकता हूँ इतना तो मैं कर सकता हूँ ओके वीक में एक बार 100 रुपीज देके किसी को खाना तो आराम से खिला सकता हूँ उतना तो मैं आराम से कर सकता हूँ नहीं वैसा कोई फिक्स प्रोग्राम अगर नहीं भी रहे तो एवरीवन प्रेजेंट हियर सभी लोग करते हैं एक्चुअली ये हाँ आपको रास्ता में कोई दिखता है 10-20 रुपया निकाल के उसको देना है एक तो चलिए एनिमल को ही देख लीजिए जो इतना का पैर पे लगा है समझ लीजिए छोटा सा है उसके ऊपर कम से कम वो जा नहीं पा रहे उसके ऊपर लोग गाड़ी नहीं चला देंगे तो हर एक चीज से ये छोटा छोटा चीज सभी लोग करते हैं कोई शायद फिक्स प्लान नहीं है कि साल में ये करना है जैसे एक साल में अपना मेरा माँ का जो बरसी था वो मंदिर में जाने के बाद फिर इधर पे ऑर्फनेज में जाके खाना खिलाया तो इस टाइप का सभी लोग में है कोई फिक्स प्लान शायद नहीं होगा बट everyone is willing to do it. that is what I am saying that will make you happy so a lifestyle खुशी इसी से मिलता है एक्चुअली यू बी हैप्पी व्हेन यू आर शेयरिंग योर थिंग्स विद अदर्स जो आपके पास जो है उसको शेयर करने से आपको खुशी मिलता है ओके हम क्या सोचते हैं ज़्यादा आने से खुशी होता है नहीं देने से खुशी होता है जो ज़्यादा देते हैं ना उससे खुशी होता है सो भगवान भी यही देता है आप जो दूसरों को देते हैं ना उनको ही ज़्यादा देता है भगवान क्योंकि उसको देने का क्षमता है माइंड टू गिव टू डिस्ट्रीब्यूट एवरीवन सो हियर टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट यू आर हैविंग ये जो वर्ड बोला आप ये समझना चाहिए बढ़िया ये आम जो दे रहा है 1000 टाइम आ रहा है फिर ये समझता नहीं है ना ये क्यों देने का मन नहीं ये प्रॉब्लम देने से नहीं हम जो दे दिए कब आए तो भाई वो डेट निकल के दो ये आप जो कर रहे हैं ये कंटिन्यू करना है ये अभी जो आया नेक्स्ट संडे में आएगा नहीं तो ये सीरीज होना चाहिए प्रोग्राम भी मिस हो जाएगा ना एक ऐसा एक स्टोरी है एक बच्चा एक छोटा सा बच्चा रहता है वो डैडी आता है घर आता है उसको एक फ्रूट्स लेके आता है बनाना एप्पल लेके बच्चे के सामने लाके देता है बच्चे को देता है वो खाना स्टार्ट बेटा बोलता है पिता बोलता है उस बच्चे को अरे यार मुझको एक बनाना देना है बेटा ये मैं सब मेरा है बोलता है उसका माँ सुनती है अरे यार तुम वही सब दिया है आपको बच्चे को बोलता है सब बनाना तुम्हारा बाप नहीं दिया एक बनाना उसको नहीं दे सकते क्या नहीं ये सब मेरा है बोलता है बच्चा
फिर वो माँ बोलती है, अरे आपको तो इतना समझना ना, वो कुछ भी दिया तो वापस नहीं देता, आपको खाना उतना मन है तो आप एक दो केला खा के ही लेके आते हैं। दो तीन केला आप खा के दूसरा जो बचा है वो लेके आते हैं। वो जब पति बोलता है नहीं मुझको चाहिए नहीं, तो बोलता हूँ मैं इसको सिखा रहा हूँ बांट के खाने का, जो भी हाथ में रहता है ना उसको बांट के खाने के लिए सिखा रहा हूँ। अगर उसको हम ऐसा नहीं सिखाएंगे, कल समाज के साथ उसका कुछ भी इंटरेक्शन नहीं रहता, उनका एक अलग जिंदगी जीने खुशी नहीं मिलता उसको, इसलिए वो सिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। These are things. Shall we conclude this one here today? Okay. Thank you one and all making yourself free and this one. Thanks a lot. Okay, thank you sir. Thank you. We can take the snaps here.